Very good morning. Today we will continue this tense portion and we will understand this topic in detail. Let's begin. Class 4. Unit name tenses. Present, past, future. Rainbow, Tina is coming from Bangalore. Yes, I have inquired at the Dadar station. The train was in Pune station at 3 o'clock. It is already 4 o'clock and the train arrives around 6 o'clock. So let us hurry up or Tina will have to wait. Rainbow, 3 o'clock, 4 o'clock and 6 o'clock tells us the time at the arrival of the train. Rainbow, we indicate the time when a particular thing or action has happened. We use the proper form of the verb. The time shown by a verb in a sentence is the tense. There are 3 tenses: present, past, future. The present tense indicates the present time when an action is taking place. The past tense is used to indicate an action that has been completed. We add ed to most of the verbs to make them into past tense. The future tense is used to show an action that will happen in the future. Future tense is formed by using shall with the pronouns I and we, will with any other pronoun or noun. To know more about the tenses, let us do an exercise. Look at the sentences. Identify the tense of each sentence. Write present tense, past tense or future tense correctly in the brackets. Sheila wrote a letter yesterday. The time shown by बताओ ये वाला कौन सा टेंस होगा लास्ट पास्ट कैसे मैंने तुमको पूछा तुमको उससे बात करो नोट लिखा है इसलिए नोट का प्रेजेंट टेंस क्या होता है राइट by the verb wrote is yesterday. It is past time. So we write past tense in the brackets. Mother will tell a story at night. We form the future tense by using will with the verb tell. The time shown by the verb will tell indicates that the action is yet to happen. It is future time. So we write future tense in the bracket. I go to school every day. The time shown तुम्हें खड़े नहीं रहना है सिर्फ आंसर देना है इन लोगों ने आंसर दिया तुम्हें भी आंसर देना है हैंड्स डाउन बोलो ये तो ऊपर से हार्ड से इजी वाला सेंटेंस है इसमें तो कोई भी दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है कौन सा टेंस है ये टेंस कितने टाइप्स के होते हैं कौन कौन से
प्रेजेंट टेंस, गुड। तो अभी दो कौन से डिस्कस किए थे, दो लोगों ने आंसर दिया, कौन कौन से थे टेंस? पास्ट। भी कौन सा हो सकता है? प्रेजेंट। कैसे बताएंगे हम इसमें? वो पहले वाला लड़के ने मुझे रोट आंसर दिया, रोट पास्ट टेंस है। इसमें ऐसा कोई वर्ड यूज किया है जो पास्ट टेंस का हो? इसमें वर्ब क्या है वो बताओ पहले। डूइंग वर्ब। चलो गो। और टेंस कौन सा है? चलो By verb go is regularly done action. It is present time. So we write the present tense in the bracket. They saw a movie yesterday. Good. Good. Birds rise early. Correct. Arun will go to the shop in the afternoon. That was well done, Rainbow. Rainbow, now that you know how to identify the tenses, इसमें आंसर भी दे रखा है फ्यूचर टेंस। तुम मुझे बता सकती हो कौन से वर्ड की हेल्प से पता चला कि ये फ्यूचर टेंस है? चलो let us do an activity. There are 3 boxes. They are marked as present tense, past tense, future tense. Put the given sentences in suitable boxes. The little girl speaks softly. We fed the ducks. She sent him a Christmas card. India will win the cup. My brother will become a doctor soon. Tommy, our dog, guards the house very well. The little bird sang sweetly. My aunt makes lovely garlands. The servant will clean the room on Sunday. Present. चलो इतने सारे सेंटेंस हैं, नोटबुक निकालो। प्रेजेंट टेंस में तुम्हारे हिसाब से कौन कौन से सेंटेंस होंगे वो लिखेंगे आप सब लोग अपने हिसाब से, फिर हम पूछेंगे। सर ये सेंटेंस भी टाइटल डालना है प्रेजेंट टेंस, और इसमें से जो सेंटेंस लगते हैं वो प्रेजेंट टेंस में डालना। उसके बाद डिस्कस करेंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर होगा। इसको ये नहीं दिख रहा है इसके वजह से, इसको ये नहीं दिख रहा है इसके वजह से। ये लगाया है ना टेबल कितना अच्छा तुम्हारा कराटे भी होता है, वो भी सुजाता मैम कराते हैं। तो कराटे कराते हैं घर में? पहले चेस खेलो। क्या बात, तुम सब कराटे आता हो? सर ऑप्शन होते हैं चेस कराटे। अच्छी बात है, पढ़ाई के अलावा ये सब चीजें एक्टिविटी में इंटरेस्ट होना चाहिए। सिर्फ प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस लिखेंगे आप लोग। नहीं, सिर्फ प्रेजेंट के लिख देंगे आपको भूमिके, और बाद में डिस्कस करना कौन सा प्रेजेंट वाला है, फिर हम फिर पास्ट लिखेंगे। बहुत टाइम नहीं खींचना इसके अंदर।
काम कीजिए, जिनका जिनका प्रेजेंट हो गया वो पास्ट में लिख दीजिए अब, और पास्ट हो जाए उसका फ्यूचर भी लिख देना। कल कितने लोग नहीं आए थे लेक्चर में, स्कूल में नहीं आए थे? तो कितने आए हैं आज? 3 4 4 8 13 है। छोटे स्टूडेंट्स कितने लोगों का बाकी है अभी भी? कितनी दफा मैंने बोला है गुजराती बॉडी को सही करना है क्लास में? एक तो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि नॉट अ सिंगल वन इज स्पीकिंग इन हिंदी ऑल्सो, नॉट अ सिंगल वन। इंग्लिश तो I thought के इंग्लिश मीडियम स्कूल है, but each and every person is speaking in Gujarati and the students are also speaking Gujarati only with the faculties. Rarely some of the teachers are speaking in English. तो तुमको तो इंग्लिश बाप जन्म में कभी नहीं आएगा, तो तुम सब वर्बली ट्राई नहीं करते हो बोलने का। How many of you can means basically can speak English? You can hands. प्रॉपर हैंड्स अप। तुम हाथ ऊपर कर रहे हो, तुम्हें एक टेंस का आंसर नहीं आता, इंग्लिश बोलोगे तुम, तुम्हें आता है? तो टेंस का आंसर तुमको आता नहीं है, वही हाथ ऊपर करेंगे जो रेडी हो, क्योंकि हो सकता है इसके बाद हम उसी तरह से बात करें। We'll see.
बहुत ज्यादा टाइम खींच रहे हो तुम सब। दैट्स इट। चलो वहां उधर उस रो में से प्रेजेंट टेंस के 2-3 सेंटेंस बोलेंगे। चलो तुम स्टार्ट। प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का बोलो जो तुमने लिखा है। The little bird sung sweetly. द लिटिल बर्ड, Sung sweetly. ये वाला लिटिल बर्ड sang sweetly। नेक्स्ट उसके पीछे My aunt makes lovely garlands. गार्लेंड्स, माय आंट मेक्स लवली गार्लेंड्स। ये राइट है क्योंकि इसमें वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में रखा है। मेक के पीछे एस लिखा हुआ है, ध्यान देना है वो वर्ड पे, टू वर्ड पे। हमने कुछ वर्ड्स के पीछे एस लिखा होगा वो तुम्हारा प्रेजेंट होगा। तुमने जो बोला द लिटिल बर्ड sang sweetly, उसमें sang है वो एक वर्ब है और वो किस वर्ड का पास्ट टेंस है? उसी रो में से कोई बोल सकता है, उसी रो में से बोलो। सीन का पास्ट टेंस है। यस, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। चलिए अब तुम लास्ट में चाहिए बोलो सेंटेंस। सिट डाउन, बोल थोड़ा जोर से, और लास्ट वर्ड बोलो तो मैं तो सेंटेंस बोलो। लास्ट वर्ड, ये सब वर्ड्स बोलो। Top. Very well. तो मैंने बोला लास्ट वर्ड, तुम फर्स्ट वर्ड बोल रही हो। ये वाला टॉम आवर गार्ड्स द हाउस वेरी वेल। यस, यहाँ पे वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है। सिट डाउन। चलिए ये वाला रो, स्टैंड अप। अब पास्ट टेंस बोलिए आप लोग। The little bird sang sweetly. The little bird sang sweetly। चलिए नेक्स्ट। The little bird. ये वाला यू स्टैंड अप। जिनका रॉन्ग हो वो खड़े रहेंगे। अब पास्ट में बोलना है आपको। उसके पीछे वाला पास्ट में बोलना है। लास्ट वर्ड बोलो। हाँ, लास्ट वर्ड बोलो, सिर्फ लास्ट वर्ड, उस सेंटेंस का लास्ट वर्ड। We fed the ducks। ये वर्ड तुमने बोला, तुम्हारा राइट है। तुमने क्या बोला मुझे? द लिटिल गर्ल स्पीक सॉफ्टली। तो सेंट, और तुम्हारा तो गलत है बेटा। सिट डाउन। ये वर्ड है ना, वी फेड द डक्स, ये किस वर्ड का पास्ट टेंस है? सिर्फ पास्ट टेंस। इसी रो में से कोई आंसर दे सकता है? इसी रो में से ये वर्ड जो फेड है, इसका ये किस वर्ड का पास्ट टेंस है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसी रो में से कोई बोल सकता है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या लगता है तुमको? दिमाग दौड़ाएंगे चारों चार स्टूडेंट्स। वी फेड द डक्स, हमने ब्लैंक्स बतख को, हैंड्स डाउन, कोई और नहीं, सिर्फ हमने ब्लैंक्स बतख को। क्या लगता है क्या हुआ होगा? किस बारे में बात कर रही है लोग? तुम सब ट्राई करना चाहोगी? दैट्स इट, टाइम बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। सिट डाउन। अब यही जो कंफ्यूजन है वो ये रो सॉल्व करेगी मेरे लिए। स्टैंड अप। यहां से पहला क्वेश्चन मेरा यही कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है? ये वर्ड कहना कि ये वर्ड का मतलब, ये वर्ड किस वर्ड का पास्ट टेंस है वो बताना है आपको। हैंड पीछे, हाथ पीछे। भैया बोलो जल्दी आंसर। तुम बोलो। फीड का पास्ट टेंस फेड है। फीड का मतलब क्या होता है? खाना देना। सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि हम बत्तख को खिला रहे थे। गुजराती में चरना कहते हैं। तो फीड का पास्ट टेंस होता है फेड। ओके, जिनको नहीं पता तो ध्यान देंगे। वी फेड द डक्स, हम बत्तख को खाना खिला रहे थे। सिट डाउन बोथ। लास्ट बोलिए पास्ट टेंस का।
अच्छा तुम्हारा पास्ट टेंस का सेंटेंस रह गया, तुम कोई पास्ट टेंस का सेंटेंस बोलो पहले। इंडिया will win the cup. कौन कौन थे जरा खड़े हो, तू खड़ा हो। और कौन था इधर से, तू खड़ा हो। कोई झापड़ खाएगा यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे शेल और विल, कल भी लेक्चर में बोला था, आज भी वापस दिखाया। शेल और विल किसमें, कौन सा टेंस में यूज होता है? फ्यूचर टेंस में। तुम दोनों को लास्ट कोई भी गलत बोलेगा तो हंसोगे नहीं तुम दोनों। से सॉरी, सिट डाउन। विल तो फ्यूचर में यूज होता है, पास्ट टेंस का आंसर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंस में वर्ब या एक्शन वर्ब के पीछे ईडी लगा हो, या फिर कल हमने कुछ वर्ड्स देखे थे राइट का रोट, ओके, ऐसे वर्ड्स दिए हो तो वो हमारा पास्ट टेंस बनता है। तुम्हें इस पूरे सेंटेंस में से एक भी पास्ट टेंस नहीं दिखा? बैठ जा बैठ। तुम्हें सिर्फ दूसरी सब चीजों में तुम्हारा मुंह खुलता है, जब भी मैं आंसर बोलता हूं तभी तुम साइलेंट हो जाते हो। मैं तुम सबको बता दूं, नेक्स्ट ईयर बोर्ड आने वाला है तुम्हारा। नेक्स्ट ईयर बोले तो ये 3-4 महीने के बाद, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जो तुम्हारा लेवल है वो 4th या 5th का लेवल है। मैं इतना वीक तुम सबको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने वीक हो गए। मस्ती कर रहे हो, सेकंड पॉइंट है उसका हम हैंडल करेंगे, लेकिन तुम आंसर भी नहीं दे पाओगे तो कैसे चलेगा? वो थोड़ी मस्ती करता है पर थोड़ा आंसर भी देता है, पैर मत हिला। यहाँ गर्ल्स थोड़े बहुत आंसर देते हैं, वो भी बहुत वीक है। इधर भी आंसर्स बहुत, ये तो बहुत ज्यादा वीक है। अभी इस तरह से आंसर दोगे तो कैसे चलेगा फिर? चल भाई तू बोल पास्ट टेंस का आंसर। थर्ड नंबर ये वाला, शी सेंट हिम अ क्रिसमस कार्ड। ये वर्ड का मतलब क्या होता है? भेजना। इसका प्रेजेंट टेंस सेंड, SEND। इज राइट और रॉन्ग? सिट डाउन। चलिए अब फ्यूचर टेंस में आप दो ही लोग हैं। फ्यूचर टेंस राइट बोलेंगे, वर्ब कौन सा है वो बताएंगे, उसका मतलब क्या होता है वो बताएंगे। इंडिया विल विन द कप। इंडिया विल विन द कप। कौन से वर्ड से पता चला? विल। विल। नेक्स्ट। नहीं तुम चुप पीछे वाला। ये इजी था नहीं तुम सबके लिए? फ्यूचर टेंस सस्ते में पता गया, ये पास्ट टेंस वालों को थोड़ा हार्ड पड़ा। चलिए सिट डाउन। अब जिन्होंने गलत सलत लिखा है वो राइट लिख लेना फिर अपने हिसाब से, ओके। चलो तुम और तुम दोनों खड़े हो जाओ। बाकी के सारे सिर्फ जो रॉन्ग हुए हैं वो लिखेंगे, जिनका रॉन्ग हुआ है वो लिखेंगे। हाँ पी लो। तुम अपने पसंद का कोई भी टेंस का एक आंसर इसमें से दे सकते हो। तुम दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। अपने पसंद का एक भी टेंस के सर मैं प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल दूंगी या मैं एग्जांपल दूंगा या फ्यूचर टेंस का एग्जांपल दूंगी या एग्जांपल दूंगा, इसमें से कोई भी सेंटेंस लेना है, उसको समझाना है ये कौन सा टेंस है और उसमें एक्शन वर्ड कौन सा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं तुम दोनों को बोल दूं। अगर ये आंसर दे दोगे तो नेक्स्ट टाइम भी पूछता रहूंगा, नहीं दोगे तो फिर तुम्हें सिखाने का मेरे पास एनर्जी नहीं है। समझ पड़ रही है? इससे नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हें सीखने नहीं कुछ मिलेगा। तो जो तुम सब जो स्टूडेंट्स आंसर नहीं देते हो लेक्चर में, वो थोड़ा आंसर देने का रखा करो, ओके। आजू बाजू वालों से भी सीखा करो कि उसको आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम तुम्हें ही है। चलिए ट्राई करेंगे थोड़ा सा। कोई भी नंबर को पहले सेंटेंस को, कौन से नंबर का सेंटेंस तू बोलेगा? सर 4th नंबर का फ्यूचर टेंस। कैसे पता चला? सर 4th में विल जो। यस चलिए अब इसी बात पे पास्ट टेंस भी शुरू हो जाए। अब सेंटेंस पास्ट टेंस का तुम्हें बोलना है, तुम्हें बोलना, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। सर पास्ट टेंस में सेकंड। इसका मतलब? सर खाना पीना। हाँ, इसका प्रेजेंट टेंस क्या होता है? हाँ, स्पेलिंग? FIT। गलत, FEED। चलो तुम बोलो। इसका प्रेजेंट टेंस क्या होता है? स्पेलिंग? स्ट्रॉन्ग रॉन्ग, SING सिंग। सिट डाउन। बहुत हो गया ये, आगे बढ़े अब इसमें। ये सी छोटी छोटी पे टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, थोड़ा आंसर रैपिडली दोगे
फटाफट होगा। अब आई एक्सपेक्ट उन सबको विल शैल वर्ब में ईडी लगा हो तो और वर्ब के पीछे एस लगा हो तो कौन सा टेंस होता है? वर्ब के पीछे एस लगा हो, जनरली सब में नहीं लगा होगा लेकिन मोस्टली लगा होगा, पेयर लगा हो तो वर्ब के पीछे एस लगा हो तो कौन सा टेंस होगा? गधा, बोलो। प्रेजेंट टेंस। वर्ब के पीछे एक्शन, वर्ब के पीछे मतलब डूइंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, लाफिंग, क्राइंग, ये सब वर्ड्स के पीछे जनरली एस लगा हो तो वो होगा प्रेजेंट। वही वर्ड्स के पीछे ईडी लगा हो तो पास्ट, और वही वर्ड के आगे विल लगा हो तो फ्यूचर। तो इतना हमको मोटा मोटा पता चल गया है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। लिखा हो गया बेटा आपका? हाँ दे दो उसे। गुड, आगे बढ़ेंगे। The little girl speaks softly. Tommy, our dog, guards the house very well. My aunt makes lovely garlands. Future. The servant will clean the room on Sunday. बरोबर, सारे क्लियर हो गए। वर्ब के पीछे एस लगा है, प्रेजेंट होगा, वर्ब पास्ट में बन जाएगा। तो देखिए ये जितने भी वर्ब थे ना, ये सारे वर्ब ईडी वाले नहीं हैं। आपको टेंस आने से पहले वर्ब एग्रीमेंट भी, हालांकि गलती ये हो गई कि टेंस से मुझे नहीं पता था कि तुम सब इतने वीक हो, वरना पहले वर्ब एग्रीमेंट सीखते। कोई बात नहीं, टेंस सीख लिया है, फिर वापस वर्ब एग्रीमेंट भी सीख लेंगे। ग्रामर में सीखने पे बहुत फोकस करना। नेक्स्ट ईयर ग्रामर उतना अच्छा नहीं रहेगा और नेक्स्ट ईयर ग्रामर अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे बोर्ड के लिए। अभी तो तुमको ऐसे भी निकाल देंगे, इसलिए मैं भी बोल रहा हूं। तुम्हारी सिस्टर है ना 10th में, इसलिए नेक्स्ट ईयर लफड़े ना हो जाए, इसलिए इसको समझने के लिए वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कौन से वर्ब का पास्ट टेंस क्या होता है। क्योंकि देख रहे हैं आप सेंटेंस के अंदर ये चेंज नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, जो होगा ये होगा। पास्ट टेंस में ये हो रहा है और फ्यूचर टेंस में विल ऐड हो रहा है। विल से हमको इजीली पता चल गया है क्योंकि वर्ब तो सेम ही है। यहाँ पे स्पीक्स होगा वर्ब में, उसमें फ्यूचर में स्पीक का स्पीक होगा, लेकिन विल आगे ऐड हो जाएगा। तो विल शेल से हमको फ्यूचर टेंस में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत किसमें होगी? सिर्फ इसने पोर्शन में दिक्कत होगी क्योंकि हमको ये वर्ड का मतलब नहीं पता है। पहले तो इसका प्रेजेंट टेंस क्या होता है वो नहीं पता है। ओके, बाय चांस अगर आपको बोल दे ये वी फीड द डक, वी फीड द डक, इसको पास्ट टेंस बनाए तो फीड का फेड होता है वो आपको नहीं पता होगा तो आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। समझ पड़ रही है पूरी क्लास को मैं क्या बोल रहा हूं? ये वो वर्ब्स हैं, जैसे देखो सेंड का किसी ने बताया मुझे कि सेंड का सेंड होता है, वो पता था उसको इसलिए। ओके, तो यहां ध्यान देंगे। इसके बाद याद कराना वर्ब एग्रीमेंट और एसएस में, हाँ चलो एसएस के तो एसएस की मैं देखेंगे।